কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ নাম। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সংখ্যা 29 থেকে কন্টিনিউ করব। অনুবাদ: অতএব এই প্রকারে কৌতুক বিশেষে রাম ও দাম প্রভৃতি হিতকারী সখাদিগের, আচ্ছা দাম মানে শ্রীদাম, সখাদের কথা বলা হচ্ছে। সখাদিগের সহিত ভোজন কার্য শেষ হলে অনন্ত গুণশালী শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে আচমন করিলেন। আচমন মানে হাত মুখ ধোয়া, প্রসাদ মানে খানা লেকার করনে কে বাদ। তখন ধাত্রী পুনর্বার কর্পূর রস রাশি পুণ্য প্রিগ মানে সুপারি হতো না, পরিপূরিত চূর্ণ সহিত স্বর্ণ বর্ণ তাম্বুল বিটিকা পানের খিলি প্রদান পূর্বক তাহাকে বলিতে লাগিলেন, বৎস, জননীর আদেশ পালন করা কর্তব্য। অতএব বাল্য চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই ব্রজগৃহে পরিপূর্ণ করা কর্তব্য। हिंदी। इस प्रकार हास परिहास पूर्वक भोजन लीला के अनंतर श्री राम एवं श्री दाम प्रभुति हितकारी सखाओं के सहित जिन्होंने आचमन कर लिया, ऐसे अनंत गुण मनोहर सर्वहितैषी श्री कृष्ण को वही धाय पुनः कर्पूर रस राशि पूर्ण सुपारी से पूरित चूर्ण सहित स्वर्ण वर्ण तांबूल को देती हुई इस प्रकार बोली, देख लाला, माता का आदेश पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। अतः बालकपन की चंचलता को छोड़कर शीघ्र ही ब्रज रानी के घर को अपने आगमन से पूर्ण कर देना। घर चले जाओ वापिस। তারপর কিয়ৎ দূর গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এবং সেই সকল বালক দিগের খেলা বিষয়ে সংযোগের একাগ্রতা বিবেচনা করিয়া গ্রীবা পরিবর্তন করিয়া এবং নয়ন ভঙ্গি পূর্বক গোচারণ পটু বৎস বালক দিগকে বলিলে, ওরে রে বৎসপালগণ, তোরা ব্রজরাজ মহিষীর প্রাণের প্রাণ, এই শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্রই নিয়ে আয়। हिंदी। तदंतर कुछ दूर जाकर श्री कृष्ण एवं उन सब संगी बालकों की खेल सम्मेलन की एकाग्रता को समझकर अपनी गर्दन को लौटाकर नाचते हुए नेत्रों के इशारे से गोचारण में समर्थ एवं श्री कृष्ण के भी पालक सुहृद बालकों से बोली, अरे रे ओ बछड़ाओं के चराने वाले ग्वारियों, तुम सब ब्रजराज की पटरानी के प्राणों के प्राण इस श्री कृष्ण को शीघ्र ही घर को लिवा लाना। অতএব এই রূপে সেই সকল নারী গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও অগ্রজ বলরাম বৎসগণের মুখে দুনির্বার বাষ্পচ্ছেদ্য এবং পুষ্প সমবেত তৃণরাশি অর্পণ করে ব্রজের সম্মুখবর্তী করিয়া ধীরে ধীরে চড়াইতে লাগিলেন। তখন তিনি গান, নৃত্য, হাস্য এবং ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। স্বর্গবাসী ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ বেদ বাক্য তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নিজ গৃহে গমন করিবার জন্য পথ অবলম্বন করিলেন। इस प्रकार समझाकर धाय आदि सभी गोपियां जब चली गई, तब श्री बलभद्र जी के सहित श्री कृष्ण ने भी अनिवार्य मुख की वायु से भी जो टूट जाता है, ऐसा पुष्प सहित कोमल तीर्ण जिनके मुख में है, ऐसे वत्स गणों को ब्रज के सम्मुख करके
उनको धीरे धीरे चलाते हुए मार्ग में गायन, नृत्य, हास परिहास, क्रीड़ा आदि करते हुए अपने घर जाने के लिए मार्ग को पकड़ लिया। उस समय आकाशचारी ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ऋषि वेद के ब्राह्मण भागों से उनकी स्तुति करते जाते हैं। स्वर्गीय इंद्र आदि देवगण पुष्पों की वृष्टि करते जाते हैं। তারপর তিনি অগ্রজ মানে বলরাম এবং মিত্রগণের সহিত পরিপাটি পূর্বক বৎসগণের আবাসে যাইবার জন্য পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বৎসগণের আবাসে মানে গোশালা, पहले गाय को उधर बांध के फिर जाएगा घर। তথায় বৎসাদিগকে একত্র মিলিত করিলে তাহারা কৃতার্থতা লাভ করাতে তিনি আনন্দিত এবং তাহাদের লাবণ্য দর্শনে হৃষ্ট হইলেন। তাহার পূর্বেই সমস্ত ব্রজবাসী লোক তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। প্রভাত কালের মতো তিনি মাঙ্গলিক সজ্জায় সজ্জিত হইলেন, মানে সমস্ত ব্রজবাসী उनको मंगलमय जो सामग्री तिलक विलक आरती वारती किया। স্বকীয় পিতা মাতাদিগকে বন্দনা করিলেন। তাহাদের নিকট হইতে সমাধিক আনন্দ এবং পুত্রোচ্চিত সম্মান লাভ করিলেন। নিজ গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় গিয়ে স্নানাদি কার্য সম্পাদন পূর্বক দিব্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। শীঘ্রই ভোজন করিয়া পুনর্বার গোদহন স্থলে গমন করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইলেন। মানে शाम को कुछ खाना पीना करके फिर से गया गौशाला दोहन करने। তাহাদের মাতৃগণের নাম করিয়া বৎসদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। সবগে তাহাদের গমনের ব্যতিক্রম হওয়াতে হাসাইতে লাগিলেন। প্রচুর পরিমাণে যে সকল দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছিল ভৃত্য সমূহ দ্বারা সেই সকল গৃহে পাঠাইতে লাগিলেন, মানে ট্রান্সফার করতে লাগে जितना दूध का बाल्टी वाल्टी सब। পুনর্বার গৃহে আসিয়া কিছুক্ষণ জননীকে আনন্দিত করে পশ্চাৎ তাহার বন্দনা করিলেন। বিশ্রাম করিবার জন্য অট্টালিকার উপরিভাগে চন্দ্রশালিকা বা চিলেকোটা অবলম্বন করিয়া সকলের উপর অতি হর্ষ বর্ষণ করিলেন। সেই জননী সেই নিজ নিজ পুত্রকে নিদ্রিত করিয়া চারিদিকে দাসী পুত্র দিগকে সন্নিহিত করিয়া গৃহকার্যের জন্য বৃহৎ গৃহে গমন করিলেন। हिंदी। उसके पश्चात श्री कृष्ण अग्रज एवं मित्रगणों के सहित परिपाटी पूर्वक बछड़ाओं के खिड़क को जाने के लिए पदक्षेप करने लगे। वहां पर बछड़ाओं को इकट्ठे करके कृतार्थ होकर आनंदित होकर एवं उन वत्सों के लावण्य के दर्शन से हर्षित हो गए। वनागमन से पहले ही समस्त ब्रजवासी उनके पास आने लग गए। प्रातः काल की तरह उनके मांगलिक कृत्य किए गए। अपने माँ बाप आदि को उन्होंने प्रणाम किया। उनके द्वारा महान आनंद एवं पुत्रोचित सम्मान का लाभ किया। पश्चात अपने घर को चलने लग गए। वहां जाकर स्नान आदि कार्य समापन पूर्वक दिव्य वस्त्र धारण करने लग गए। शीघ्र ही भोजन करके पुनः गोदोहन भूमि में जा करके तटस्थ जनों को सुख देने लग गए। उनकी माताओं के नाम से बछड़ाओं को बुलाने लग गए। वेग पूर्वक उन वत्सों के गमन के व्यतिक्रम से सबको हंसाने लग गए। दूहे हुए सारे दुग्धों को सेवक समूह के द्वारा घर को भिजवाने लग गए। पुनः घर को आकर कुछ क्षणों तक माता को आनंदित कर उनके चरणों को प्राप्त कर नमस्कार किया। पश्चात विश्राम करने के लिए अटारी के ऊपर के भाग का आश्रय लेकर सभी के ऊपर अत्यंत हर्ष की वर्षा कर दी। वह माता उस अपने पुत्र को शयन कराकर
श्री कृष्ण बलदेव के पलंग के चारों ओर दासी पुत्रों को पास में बैठाकर घर के काम के लिए विशाल भवन को चली गई। অতএব এই রূপে পরম কৌতুকের সহিত কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সেই নৃশংস কংসাসুর নিজের চরকথিত বর্ণনা দ্বারা, চরকথিত মানে চর মানে গুপ্তচর, বর্ণনা দ্বারা মানে গুপ্তচর লোক যাকে उनको जो रिप्यूट किया, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন आदि वार्ता श्रवण करिया, मैंने उनको पता चल गया कंस के इन लोग ने ट्रांसफर हुआ है, गोकुल से वृंदावन चले गए। निज मने चिंता करिते लागिल। हिंदी। हरे कृष्णा, एक मिनट। निर्गुणा निम्न माता जी पढ़िए। तेज आगे प्रभु, ठीक है आगे प्रभु। इस प्रकार परम कौतुक के सहित कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उस क्रूर कंस नामक असुर ने अपने गूढ़चर के द्वारा किए गए वर्णन से श्री कृष्ण का वृंदावन में आने आदि का समाचार सुनकर अपने अंतःकरण में विचार किया कि अभी कंस विचार कर रहा है। कंस हाय कंस विचार कर हाय हाय देवीर সত্যতাপূর্ণ বচনানুসারে নন্দগোপের শিশুরূপ কোনো এক কপটতাই বসুদেবাদি কর্তৃক যে গুপ্ত হইয়াছে, ইহা যেন বোধ হইতেছে। मैंने उनको हिंट लग रहा है कि ये वसुदेव का ही पुत्र है। যে শিশু নূতন শরীর ধারণ করিলে অসহ্য তেজ সম্পন্ন পুতনাদিগকে ক্রমে গাম্ভীর্য বেষ্টিত সমাধিক শৌর্য দ্বারা বধ করিয়াছে, তাহার নামের প্রভাবেই আমার হৃদয় ভীত হইতেছে। অতএব ছলনা করিয়াই ताहा के बध करिते हइबे। चलिए, उनका एकदम गेस एकदम 100% राइट हो गया कंस का कि यही मेरा मृत्यु का कारण होगा। हाय किंतु ताहारो उत्तरोत्तर अतिरिक्त समुचित छल प्रयोग करिते त्रुटि करे নাই, तथापि ताहारा अपमानित हইয়া निष्फल मनोरथ হইয়াছে। এইরূপ বিচার করিয়া পুনর্বার সেই দূতকে গৃহ হইতে নিকটে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। कंस पूछ रहे वो गुप्तचर को, दूत को, हे दूत, তুমি কি ইহা জানিয়াছো যে কোন জাতিতে তাহার সমাধিক আদর এবং পরম স্নেহ আছে? दूत বলিল, মহারাজ, গো বৎসগণের উপর তাহার स्नेहाद्रेक আছে প্রতীয়মান হইতেছে। कंस बहुत इंटेलिजेंट है, पूछ रहे हैं बच्चे को क्या चीज अच्छा लगता है, उन लोग को क्या चीज से ज्यादा प्रेम है। तो कंस का गुप्तचर ने क्या बोला कि उन लोगों को गाय बछड़ा इत्यादि ये अच्छा लगता है। अभी क्या करेगा? अभी असुर जो भेजेगा, नेक्स्ट वाला असुर गाय रूप में भेजेगा। हिंदी। हाय देवी के सत्यतापूर्ण वचनानुसार तो यह मालूम होता है कि नंद गोप के बालक रूप से वह कोई छल ही वसुदेव जी के द्वारा गुम कर दिया गया है। जिस बालक ने छोटे छोटे नवीन अंगों से युक्त होकर भी असह्य तेज संपन्न पूतना आदि को क्रमशः गंभीरता से वेष्टित अतिशय पराक्रम के द्वारा मार दिया, उसके नाम के प्रभाव से ही मेरा हृदय उद्विग्न हो जाता है। अतः उसको छल बल से ही मारना चाहिए। हाय हाय, देखो उन पूतना आदि राक्षसों ने यद्यपि उत्तरोत्तर अधिक समुचित छलों का प्रयोग किया था, तो भी वे सब अपमानित होकर व्यर्थ हो गए। इस प्रकार विचार कर फिर भी उसी गुप्तचर को उसके घर से अपने निकट बुलवा कर पूछा कि
हे दूत, तुमने यह भी जाना है कि उस नंद गोप कुमार का कौन सी जाति में अधिक आदर एवं परम स्नेह है? वह दूत बोला, महाराज, गोवत्स गणों के ऊपर उसका अधिकतर स्नेह प्रतीत होता है। तो भी अगला वाला जो असुर होगा वो छोटा छोटा बछड़ा होगा, बछड़ा वाला असुर, वत्सासुर। কংস বলিল, তুমি তোমার অট্টালিকায় সম্যক রূপে গমন করো। পুনর্বার অপরকে বলিল, সেই বৎসাসুরকে সম্মুখে আহ্বান করো। সেই বৎসাসুর শচী অতি ইন্দ্রেরও গ্লানি উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই ব্যক্তি সসম্ভ্রমে বিক্রমের প্রণালী প্রকাশ করিয়া তাহাকে আনিয়া সমর্পণ করিল। যেরূপ নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু স্থির হইয়া থাকে, সেইরূপ ওই ব্যক্তির স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সেই জল সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলে ধূলিরাশি যেরূপ গলিয়া যায়, সেরূপ কংসরাজ ওই বৎসাসুরকে সহবাসে গলিয়া গিয়া গোপনে তাহাকে পুত্রের মতো বলিতে লাগিলেন, বৎসাসুর, নন্দের ব্রজে গমন করো। গমন করিয়া যিনি বৎসাদিগকে চড়াইতেছেন এবং যিনি খেলা করিতেছেন, সেই বালকের নিকটে গমন করিবে। তথায় আপনার বৎসমূর্তি ধারণ করিয়া তাহার অনিষ্ট উৎপাদন করিও। हरि बोल नहीं एक्चुअली, यस। कंस बोला, अच्छा, तुम अब अपने महंत को चले जाओ। पुनः दूसरे सेवक से कहा, उस वत्सासुर को मेरे सामने बुला लाओ। वह वत्सासुर इंद्र को भी ग्लानि उत्पन्न करने वाला था। उसी सेवक ने संभ्रम एवं विक्रम की प्रणाली का प्रकाश करते हुए उसको लाकर कंस को समर्पण कर दिया। वह वत्सासुर जल बिंदु की तरह द्रवीभूत एवं नम्र होकर कंस के आगे खड़ा हो गया। उस जल से संबंध को प्राप्त होने पर धूलि का समूह जैसे गल जाता है, उसी प्रकार कंस भी वत्सासुर के संग से गल गया। पुनः एकांत में पुत्र की तरह समझाकर उसको बोला, हे वत्सासुर, तुम नंद के ब्रज को चले जाओ। वहां जाकर बछड़ाओं को चराते हुए, कीड़ा करते हुए उस नंद कुमार के पास जाकर अपने वत्स वेश को उत्पन्न कर उसके अपकार को प्रारंभ कर दो। তারপর মহারাজের আজ্ঞা বহ ব্যক্তিগণের যেরূপ আজ্ঞা, সেই বৎসাসুর এই কথা বলিয়া তাহার উল্লিখিত পথে গমন করিয়া তদে অনুশাসন বশত নির্ভয়ে তথায় উপস্থিত হইল। ওই স্থানে বৎসক্রীড়ন নামক যমুনা নদীর জল বহুল নির্মল প্রদেশে বৎসাসুর প্রভৃতি হিংস্র স্বভাবের লোকদিগের পক্ষে মারণ কর্মশীল ব্রজরাজ কুমার বৎসদিগকে আদর করিতেছেন। তখন ওই অসুর বিষধরের মতো তাহাকে প্রত্যক্ষ করিল। हिंदी। तदंतर वह वत्सासुर राजाओं को आज्ञा को वितरण करने वाले आपकी जैसी आज्ञा, इस प्रकार कहकर अपनी आत्मा को कंस के वचनों का अनुगामी बताकर उसकी आज्ञा के अनुसार निर्भयता पूर्वक ही वहां चला आया, जहां पर वत्स कीड़न नामक निर्मल श्री जमुना के एक तीर पर वत्सासुर जैसों के मारण कर्मपरायण ब्रजराज कुमार ने बछड़ों का मान करते हुए उस अशुभ को विषधर की तरह दृष्टिगोचर कर लिया, अर्थात देख लिया। তারপর বৎসাসুর সগর্বে ইতস্তত কপট গতিতে তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার গন্ধ পাইয়া তৃণবহুল প্রদেশে যে সকল বৎস চরিতেছিলেন, ওই সকল বৎস ব্যাকুল ভাবে দর্শন করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ওই সকল বৎসদিগকে ব্যাকুল দেখিয়া নির্জনে জ্যেষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাত, প্রাতকালে আসে নাই, প্রাতকালে আসে নাই, অথচ জলের সমীপে
এই কোন বৎসকে দেখিতে পাইতেছি? হিন্দি। तदंतर माश्चर्य से इधर उधर घूमते हुए उस वत्सासुर की गंध के अनुसंधान से श्री कृष्ण के सभी बछड़े व्यग्रता पूर्वक उस असुर की ओर देखते हुए अधिक तीर्ण वाले प्रदेश में चले आए। उस समय श्री कृष्ण ने सभी वत्सों को व्याकुल देखकर एकांत में बहाने पूर्वक बड़े भैया से कहा कि हे बड़े भैया जी, इस नवीन बछड़े को आप पहचानते हैं? प्रातः काल तो आया नहीं था, अतः जल के पास में यह कौन बछड़ा दिखाई दे रहा है? বলরাম বলিলেন, ভাই, না না। কৃষ্ণ বলিলেন, নিরূপণ করুন। বলরাম বলিলেন, তাই তো ভাই, ভীষণ প্রকৃতি বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। কৃষ্ণ বলিলেন, জ্যেষ্ঠ, এই বৎস একটি অসুর। বলরাম বলিলেন, সত্য বটে, কারণ আমাদের এবং বৎসগণের উপর ইহার আকস্মাৎ অসৌম্য দর্শনপূর্ণ অর্থাৎ ক্রূরভাবে দৃষ্টি পতিত হইতেছে। কৃষ্ণ বলিলেন, যদি আপনি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি ইহাকে বিনাশ করি। বলরাম বলিলেন, লোকবাদ ও কলঙ্কবাদ হইতে শঙ্কা করি। समझ में आ रहा है? क्योंकि बछड़ा को मारेगा तो लोकबाद सब बोलेगा, छी छी, बच्चा, गाय का बच्चा को मार दिया। তো বলরাম বলিলেন, লোকবাদ ও কলঙ্কবাদ হইতে শঙ্কা করি। কৃষ্ণ বলিলেন, মৃত্যু হইলে এই ব্যক্তি অসুর তাহা প্রত্যক্ষ হইবে, মানে আপনার রূপ আ যায়গা, उसका ओरिजिनल फॉर्म। তাহাতে কেউই অপবাদ দিবে না। বলরাম সআনন্দে বলিলেন, হে বিপক্ষ সন্তাপন শ্রীকৃষ্ণ, এই অসুর অত্যন্ত ছলযুক্ত, অতএব তুমি সচ্ছল ভাবে ধীরে ধীরে ইহার নিকট গমন করো। হিন্দি। श्री बलराम जी बोले, भैया, ना ना, प्रातः काल तो यह खिड़क से आया नहीं था। श्री कृष्ण बोले, देखो तो सही। श्री राम बोले, भैया, यह तो भयंकर प्रकृति जैसा मालूम पड़ता है। श्री कृष्ण बोले, हे पूर्वज, यह वत्स तो असुर है। श्री राम बोले, हाँ भैया, तुम्हारी बात सत्य है, कारण हमारे ऊपर एवं वत्सों के ऊपर इसकी अकस्मात कुदृष्टि दिखाई देती है। श्री कृष्ण बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको मार डालूं। श्री राम बोले, लोक से एवं कलंक से शंका करता हूं। श्री कृष्ण बोले, मरने पर यह व्यक्ति अशुभ है, यह बात प्रत्यक्ष हो जाएगी, उसके बाद कोई भी अपवाद नहीं करेगा। श्री बलराम जी हर्ष पूर्वक बोले, हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले श्री कृष्ण, यह असुर अत्यंत छल युक्त है, अतः तुम भी छल पूर्वक धीरे धीरे इसके सामने जाओ। তারপর শ্রী বৎস লাঞ্ছন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য বৎসদিগকে চুচুকার রূপ সংকেতিক আহ্বান শব্দে নিকটস্থ করিয়া এবং কণ্ঠ, গণ্ডস্থল ও উদারাদি স্থলে কণ্ডু, চুলকোনা অপনয়ন করিয়া চারিদিকে খেলিতে খেলিতে গাইতে গাইতে যেন উৎসব বিস্তার করিয়া বিদ্যমান রইলেন। হিন্দি। तदंतर श्री वत्स का चिन्ह है वक्षस्थल में, जिनके ऐसे श्री कृष्ण अन्य बछड़ों को चुचुकार के द्वारा अपने पास लाते हुए उनके कंठ, कपोल, उदर आदि स्थानों पर खुजलाहट को दूर करते हुए चारों ओर खेलते हुए गाते हुए महोत्सव का सा विस्तार करने लग गए। फिर से एक बार स्टार्ट करिए, क्या लिखा है? श्री वत्स लांछन, मैंने जिनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है ऐसे कृष्ण फिर से बोलिए, अन्य क्या? बछड़ों को चुचुकार के द्वारा नहीं, अपने नहीं, पास अरे, लाते अरे, हुए। तो ऐसे पहला वाला वर्ड मांगा। क्या? वत्स लांछन फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? तदंतर श्री वत्स का चिन्ह है वक्षस्थल में, जिनके अच्छा, श्रीवत्स लांछन। अच्छा, ओ, श्रीवत्स माने तो श्री को धारण किया है ना, माने लक्ष्मी देवी को धारण किया है चेस्ट में। श्री वत्स का चिन्ह वो जो होता है ना, वो बाल का गुच्छा, उसको बोलते हैं ना।
इसका इसका तो वत्स से माने बछड़ा से कुछ लेना देना नहीं है ना। नहीं नहीं, ये कृष्ण को संबोधित किया गया है। वो तो ठीक है, यहाँ इस वर्ड को यूज कर रहे हैं ये वत्स। भगवान का मतलब ये बता रहा है उनका विलासिता कि वो भगवान है, इसमें कुछ नाम यूज करते हैं तो कुछ सिग्निफिकेंस रहता है ना। श्रीवत्स, अभी वत्स का भी वत्स का ही तो आलोचना चल रहा है, बछड़ाओं का तो आलोचना चल रहा है। स्पेलिंग भी एक ही है, बॉय खंडत्व दंतस्व। এনিওয়েজ, আগলা অনুবাদ। তাহার পর ওই অসুর মনে করিতে লাগিলে যে যেন আমি কৃষ্ণকে বিনা করিবার বেশ ছিদ্র পথ লাভ করিয়াছি। এইরূপ ভাবিয়া কপটতা পূর্বক নিজের কন্ডু অপনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিকটে আসিল। মানে উनको भी थोड़ा चुलका देगा भगवान। হরে কৃষ্ণ, তো একদম চুলকে দেবে। এইরূপ ভাবিয়া কপটতা পূর্বক নিজের কন্ডু অপনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিকটে আসিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সরল ভাবে দেখাইয়া এবং স্নেহপূর্ণ নয়ন ক্ষেপে সরল চিহ্ন পরিত্যাগ না করিয়া পুচ্ছ এবং পাদের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়া घुराइते लागिले। जा पूछ पूछ, एक हाथ से पूछ पकड़ा, दूसरा हाथ पे चरण पकड़ा, ऐसे करके घुमाया वत्सासुर को। वो बेचारा आया था, थोड़ा चुलका देगा भगवान, एकदम चुलका दिया कि गोविंद। यस, अनुवाद हिंदी। उसके बाद वह असुर अपने मन में यह मानने लग गया कि मानो मैंने कृष्ण के विनाश करने का कपट वेश प्राप्त कर लिया है। ऐसा भाव करके कपटमयी अपनी खुजली को दूर करवाने की इच्छा से स्वयं पास में आ गया। उस समय श्री कृष्ण भी सरलता पूर्वक अन्य बछड़ों को सहसा छोड़कर पूंछ एवं पिछले पैरों सहित उस असुर को पकड़कर घुमाने लग गए। बेचारा শ্রীকৃষ্ণ বৎসাসুরকে ঘুরাইয়া যত প্রকার পরিবর্তন করিলেন, ক্রমে তত বুদ্ধি পরিপাটি নির্গত হইল এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। পরে যখন তিনি ক্রীড়া করিয়া ফল পারিবার জন্য ওই বৎসাসুরকে কপিথু কত্রত বেল বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন, क्योंकि वो गिरेगा बेल पेड़ के ऊपर तो बेल गिरेगा नीचे, सब खाएगा। তখন গোপ শিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান শক্তি এবং নটের মতো শিল্প নৈপুণ্য ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। वेल डन। हिंदी। घुमाते हुए श्री कृष्ण ने जैसे जैसे वत्सासुर का परिवर्तन किया, वैसे वैसे ही उसकी चेतना क्रमशः निकल गई और वह रूपांतर को प्राप्त हो गया। पश्चात खेल खेल से फल गिराने के लिए उसको कपित कैथ वृक्ष के ऊपर जब फेंक दिया, तब तो सभी गोप बालक श्री कृष्ण की ज्ञान शक्ति की एवं नट की तरह कला कौशल की प्रशंसा करने लगे। कपिथु माने बेल, बेल पेड़ के ऊपर बंगाली में लिखा है कत्रोत बेल। कत्रोत बेल माने के वही होगा शायद, वो जो कट बेल मिलता है ना अशोक प्रभु, कट बेल। कैथ लिखा है यहाँ पे, कैथ फल। कौतबेली तो बोलिए हमरा। कौतबेल ना, वही उस वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। ओके। তারপর দেবগণ আনন্দে পুষ্প বৃষ্টি এবং হাস্য বৃষ্টি করিল। সমস্ত পুষ্পের গন্ধ এক প্রকার, অথচ হাস্য রাশি ও সূক্ষ্ম জন্য বলিয়া পুষ্পের তুল্য রূপ। এই কারণে নাসিকা এবং চক্ষুর দ্বারে ওই পুষ্প বৃষ্টি এবং হাস্য বৃষ্টির প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় নাই। হিন্দি। तदंतर देवताओं ने श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि तथा हास्य वृष्टि की। सभी पुष्पों की गंध एक प्रकार की थी और हास्य समूह भी सुखजनक होने के कारण पुष्पों के समान ही था। इसी कारण ग्वाल बाल
नासिका एवं नेत्रों द्वारा इस पुष्प वृष्टि और हास्य वृष्टि की भिन्नता को समझने में समर्थ न हुए। ये हास्य वृष्टि तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। देवता लोग हास्य वृष्टि का ये क्या होगा? ऐसे कुछ होगा, सब एक साथ हंसने तो लगे। हरि बोल दिया, जय जयकार किया। हरि बोल तो अलग थी, हास्य वृष्टि। अट्टहास होगा, सभी मिलकर हंस रहे हैं ना। हाँ। अट्टहास तो असुर लोग करता है। ऐसे তারপরে স্বর্গীয় সভাসদগণ বা দেবগণ পরিহাসে হাস্যের তরঙ্গ উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন, অসুর বৈরী শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চয়ই এরূপ তাৎপর্য পরিণত হইতেছে। হিন্দি। उसके पश्चात स्वर्गीय सभासद एवं देवगण परिहास से प्रकाशमान हास्य पूर्वक अनुकथन करते हुए यह बोले कि असुरों के बैरी श्री कृष्ण का निश्चय रूपेण हार्दिक तात्पर्य यही निकलता है कि তথা আমরা গোপাল, আমরা ধেনুর পরিচয় পাইয়াছি, অতএব যদি কেহ রূপ গোপন করে তথাপি আমরা অনুমানের কারণ সহযোগে সেই ধেনুর শত্রুকেও জানিতে পারিয়া থাকি, অতএব ওরে রে বৎসাকৃতি দেব বিপক্ষ মানে অসুর, আমার হস্ত হইতে তোমার কিরূপে মোচন হইবে? যদি তোমার এই মোক্ষে বাসনা থাকে, তা হইলে মরণা বাসনে সেই মোক্ষ সংঘটিত হোক। হিন্দি। गोविंद। हम गोपाल हैं, अतः गौओं को भली प्रकार पहचानते हैं। अतः यदि कोई दुष्ट रूप छिपाकर गैया या बछड़ाओं के रूप से हमारे सामने आता है, तो भी हम अनुमान के कारण के सहयोग से गैयाओं के शत्रु को भी भली प्रकार पहचान लेते हैं। इसीलिए अरे गे वत्सा किति सुगरीपो, हमारे जैसों के हाथ से तेरा छुटकारा कैसे हो सकता है? हाँ, यदि तू मोक्ष चाहता है तब तो मरने के बाद वह मोक्ष संगठित हो जाए, क्योंकि मेरे हाथ से मरने वाले को भी मोक्ष मिल जाती है। অতএব এই রূপে ওই কৃষ্ণ এবং বলরাম বৎসাদিগকে রক্ষা করিয়া সকল লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যাহাদের জন্য প্রাতকালে ভোজনাদি এবং যাহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া অসুর বিনাশাদিও ঘটিত। তাহার পর সেই দিবসেও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের পূর্বমতি নিজ গৃহে আগমন ঘটিয়াছিল, কিন্তু বৎসসুরের বধ বৃত্তান্ত অনিষ্টকর। জানি না যে এই জনশ্রুতিতে কিরূপ ঘটাইবে। ইহা ভাবিয়া তাহার প্রিয় बंधुगण ताहा आवरण करिया राखिल। माने किसी को बोला नहीं, क्योंकि बोलने से नेगेटिविटी फैल जाएगा कि कृष्ण ने एक बच्चे को मारा, बछड़ा को मारा, है ना। तो इसीलिए कोई दोस्त अपना माता पिता को ये घटना सुनाया नहीं। हिंदी। अतएव इस प्रकार श्री कृष्ण बलदेव दोनों भैया बछड़ों की रक्षा करते हुए भी सब लोगों की रक्षा करते थे। सब लोगों की रक्षा के लिए ही उनकी प्रातः काल भोजन आदि लीला होती थी। उसी लीला के अंतर्गत दैत्य वध आदि कार्य भी अनुसांगिक हो जाते थे। तदंतर उस दिन भी श्री कृष्ण बलदेव का अपने भवन में आना पहले की तरह हो गया, किंतु बत्सासुर के वध का वृतांत अनिष्टकारक है, इसलिए जाना नहीं जाता कि जनों की किंवदंती क्या क्या कहेगी। अतएव उनके समस्त बंधुगण ने इस वृतांत को सचेत होकर छिपा लिया। किंतु एदिके कंस पालक এদিকে কংস বৎস পালক শ্রীকৃষ্ণ হইতে বৎসাসুরের নির্বাসন বৃত্তান্ত চরমুখে কর্ণরন্ধ্রে স্পর্শমাত্র অন্তরে আনিয়া বারংবার নেত্রদয় নিমীলিত করিয়া রইল। কংসাসুর মৃত্যু প্রায়
দশমী দশা বা মূর্ছা প্রাপ্ত হইল। আমাত্যগণ অতি কষ্টে তাহাকে বাহিরে সচেতন করিল। পরে তিনি ওই সকল মন্ত্রীবর্গের সহিত এইরূপ কুৎসিত মন্ত্রণাহ করিতে লাগিলেন। হায়, শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট কার্যে একান্ত সুনিপুণ বহুতর অহংকারী ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা কেউই কিছুই মঙ্গল সংগ্রহ করিতে পারে নাই। তাহাদিগের বারংবার কপটতার প্রার্থনা কখনো আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই, বরং তাহা দ্বারাই তাহারা মৃত্যু লাভ করিয়াছে। অতএব আমরা কি করিব? হিন্দি। इधर कंस ने भी वत्स पालक श्री कृष्ण से वत्सासुर के मरण को गुप्तचर के मुख से विष की तरह कानों के छिद्रों के स्पर्श मात्र से अपने अंतःकरण में लाकर बहुत देर तक दोनों नेत्र मूंद लिए। इस वृतांत से मृत्यु प्राय दशमी दशा को प्राप्त हुआ वह कंस मंत्रियों ने किसी प्रकार बाहर सचेत किया। सचेत होने के बाद उन्हीं मंत्रियों के साथ यह कुविचार करने लग गया कि हाय देखो, श्री कृष्ण के अनिष्ट करने में सुनिपुण दंभ से भरे हुए बहुत से असुर भेजे, किंतु उन सब ने मेरे कल्याण को तो किंचित भी संचित नहीं किया, एवं उन असुरों की दंभ इच्छा में व्याप्त होने की इच्छा ने हमारी अभिलाषा की तो रक्षा नहीं की, प्रत्युत बल्कि उन्हीं को खा गई। अतः ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यस, निर्गुणा नीलम्बरी माता जी, थोड़ा सुधा में वल्लभी माता जी को कहो, बोलिए बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ तो भगवान को जब बाल लीला करनी थी तो हमको लगता है कि यहाँ पर उनको विस्मित भी कर दिया गया होगा, बच्चों को जो उनके साथ खेलते थे ग्वालों, ताकि वो जाके घर में ना कुछ बोल पाए। नहीं नहीं नहीं, विस्मित क्यों करेगा? उन लोग भी भगवान का हितकारी थे ना, तो वो तो ये ठीक है, लेकिन बाल तो समझदारी से नहीं बोला। यहाँ लिखा है समझदारी से नहीं बोला। অমাত্যগণ বলিলেন, মহারাজ, এই বিষয়ে কেবল একমাত্র বকাসুরকে একটি বল স্বরূপ জানিয়াই আমরা অবলম্বন করিতে পারিতেছি, কারণ যাহারা বককে জানে তাহারাই কপটতাকে একমাত্র उत्कृष्ट सार पदार्थ भाविया गांभीर्य धारण करिया আছে। समझ में आया? क्योंकि बॉक ऐसा एक प्राणी है, गंभीर, बहुत गंभीर जैसा से खड़ा रहता है ना, लेकिन एक आंख बंद रहता है और दूसरा आंख खुला रहता है नीचे की तरफ। बको ध्यानम। हाँ, बको ध्यानम, यस। धूर्तता में है पूर्ण। हिंदी। मंत्रीगण बोले, महाराज, इस विषय में केवल बकासुर को बल स्वरूप जानकर हम उसका अवलंबन करते हैं, कारण बकासुर की जाति में ही दंभ की सामग्रियां गंभीरता का आचरण करती है। कंस বলিলেন, হ্যাঁ, স্মরণ হইতেছে, স্মরণ হইয়াছে, একমাত্র কেবল বকাসুরই আমার সুহৃদয়ে বিদ্যমান আছে, তাহাকেই তথায় পাঠাইবার জন্য নিযুক্ত করো। সজ্জনের অনিষ্টকারী কংস পালিত নিতান্ত দুষ্ট সেই বকাসুর এই রূপে আদৃষ্ট হইয়া সম্প্রতি নন্দেশ্বর পর্বতের সমীপবর্তী বকস্থল নামক স্থানে সরোবরের নিকটবর্তী প্রদেশে ভাবি শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ নিতান্ত অবগত হইয়া গিরিশৃঙ্গ ভ্রমণকারী ছল অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ এমন ভাবে অবস্থিত হইল যেন তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ একটি গিরিশৃঙ্গ বলিয়াই বোধ হয়, এবং যে স্থানে গিরিশৃঙ্গের সদৃশ্য ধারণ করিয়া দম্ভই যেন গড়ের মতো বিরাজ করিতেছেন। हिंदी। कंस बोला, हाँ, मुझे स्मरण आ गया, वह बकासुर ही केवल मेरा विशिष्ट मित्र है। उस नंद ब्रज में भेजने के लिए उसी को मेरे पास उपस्थित करो।
इस प्रकार कहकर सेवक द्वारा उसको बुलवा कर समझाया। पश्चात सज्जनों का अनिष्टकारी कंस के द्वारा पालित यह दुष्ट बकासुर इस प्रकार आदिष्ट होकर आजकल नंदीश्वर पर्वत के निकटवर्ती बकास्थल नामक स्थान में सरोवर के समीपवर्ती प्रदेश में भविष्य में श्री कृष्ण यहाँ अवश्य प्रवेश करेंगे। यह बात जानकर गिरिसिंह भ्रमकारी दंभ को धारण करता हुआ वहां जाकर बैठ गया। अर्थात बैठा हुआ बकासुर दूर से पर्वत सिंह जैसा मालूम पड़ता था, और जिस बकासुर में तुल्य पर्यायवाचक होने के कारण दंभ ही गह्वर अर्थात गुफा का सा आचरण कर रहा था, तात्पर्य उसका दंभ ही गुफा के समान था। है कृष्ण, वो एक गह्वर वन भी है ना वहां पे। यस, गिनी सिंह है क्या? घेवर वन। कोई गह्वर वर्ड आया यहाँ पे, और एक ही आया नहीं, ये तो गिरीश सिंह जैसा लग रहा था बकासुर को। नंदीश्वर पर्वत ये निकट नंदीश्वर पर्वत तो है, लेकिन ये इनको गिरीश सिंह जैसा लग रहा था कि पर्वत का चूरा जैसा लग रहा था बकासुर को। भ्रमकारी তৎকালে শ্রী গোপাল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গোপ শিশুগণ গোবৎসাদিগকে পালন জলপান তীরে অবস্থিত এক এবং আপনারাও জলপান পৃথক পরস্পর পরস্পরকে জলে নিমগ্ন করিয়া স্নান ও জল হইতে গত্রোত্থান করে অলঙ্কার করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। অলঙ্কার করিয়া পুষ্পাহরণের জন্য চারিদিকে সঞ্চারণ করিয়াছিল। সঞ্চারণ করিতে করিতে সেই বককে দেখিতে পাইয়াছিল এবং উৎপেক্ষা করিয়াছিল, ওহে দূরে এই যে পর্বত রহিয়াছে ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহার সম্মুখে श्रृंग देखिते पाइतेछि। अच्छा, श्रृंग, ये बकासुर का श्रृंग होता है क्या? श्रृंग नहीं, वो ठोट होगा हुआ, वो जो ठोट, वो श्रृंग जैसे लग रहा था उनको। बक का ठोट होता है ना, ठोट, बिग। मतलब ये शिखर बोल रहा है, जैसे हिंदी में लिखा है शिखर की तरह, पर्वत के शिखर सम्मुखे, सम्मुखे माने सामने, तो बक का सामने ऐसे बिग होता है ना, बिग, उसको श्रृंगा जैसे लग रहा है। इहार सम्मुखे श्रृंग देखिते पाइतेछि, তাহার পর শব্দ শব্দই যেন সচিপতি ইন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বজ্র দ্বারা এই শৃঙ্গ ছেদন করিয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। श्रृंग छेदन, क्योंकि श्रृंग में एक फूटा रहता है ना, ठीक बोल रहा हूं ना? ये पंछी का बीक में एक छेदा रहता है, तो उनको लगा कि इंद्र ने गुस्सा होकर इनका श्रृंग में एक छेदा कर दिया वज्र से, ऐसा उनको लगा। पुनर्बार फिर से निरूपण करिया बोलिल, फिर से देखकर बोला, इहा पर्वत सिंह बोलिया बोध হইতেছে না, কিন্তু কোন জন্তু বিশেষ হইবে এবং ওই জন্তু যেন অপরাধ করিয়া नतमस्तके विद्यमान रहियाছে। नतमस्तके जैसे बक रहता ना, एकदम नमस्कार करके एकदम नीचे निम्रता से, যেহেতু ভীষণ ভাব ধারণ করাতে এবং তীক্ষ্ণতা গুণে বিখ্যাত চক্ষুদয় থাকাতে যেন বক বলিয়াই বিবেচনা করা যাইতেছে। चलिए, ठीक से पता चल गया। हिंदी कितना सुंदर लिखा हुआ है। उस समय सभी गोपाल बाल श्री गोपाल जी से सम्मिलित होकर गोवत्सों की रक्षा करते हुए, जलपान कराते हुए, श्री जमुना तीर पर वत्सों को स्थापित करते हुए, स्वयं भी जलपान करते हुए, परस्पर में परस्पर को जल में निमग्न करते हुए, स्नान कराते कराते जल से उठकर वस्त्र अलंकार आदि धारण करके खेलने लग गए। पश्चात मयूर पिच्छ धारण करते हुए पुष्पों को लाने के लिए चारों ओर घूमने लग गए, और घूमते घूमते उन्होंने बकासुर को देख लिया एवं इस प्रकार उत्प्रेक्षा भी करने लग गए कि
ओहो, अरे मित्रों, दूर से ही यह पर्वत मालूम पड़ता है, परंतु यह आया कहाँ से? सामने उसका शिखर भी दिखाई देता है। उसके बाद हमें तो यह प्रतीत होता है कि इंद्र ने क्रोध से वज्र के द्वारा शीघ्र ही इस शिखर को तोड़ दिया है। पुनः विचार पूर्वक देखकर बोले, भैयाओं, यह पर्वत का शिखर तो नहीं ज्ञात होता, किंतु कोई जंतु विशेष मालूम पड़ता है, और यह जंतु मानो कुछ बिगाड़ खाता करने की इच्छा से मस्तक नीचा किए हुए है, क्योंकि भयंकर भाव धारण करने के कारण एवं तीक्ष्णता गुण में विख्यात चोट से युक्त होने के कारण बगुला जैसा प्रतीत होता है। बगुला। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আকারে পক্ষী তুল্য হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টায় পক্ষীর মতো নয়। ইহা কি কোনো নতুন বক, যাহাকে সাক্ষাৎ পর্বত সিংহের মতো অবস্থিত দেখিতেছি? হিন্দি। श्री कृष्ण बोले, मित्रों, यह जंतु आकार से तो पक्षी के तुल्य हो सकता है, किंतु चेष्टा से पक्षी के समान नहीं है। यह तो कोई नवीन बगुला है क्या, जिसकी साक्षात पर्वत के शिखर के समान स्थिति दिखाई पड़ती है। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটে গমন করতে ইচ্ছা করিয়াই কপটতার সহিত শ্লেষ সংঘটিত ছল শব্দ উচ্চারণ করিলেন। अरे बोलिए। हो गया। इस पूर्वोक्त वाक्य में श्री कृष्ण ने उसके निकट जाने की इच्छा से ही किसी बहाने से श्लेषालंकार विशिष्ट कूट शब्द को पढ़ा है, अर्थात उच्चारण किया है। कूट शब्द के कपट, शिखर आदि अनेक अर्थ होते हैं। তারপর স্পর্শ বিষয় বিষধর শিশু যেরূপ অতিশয় কৌতুক বশত ভেকের নিকট গমন করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ কমললোচন কুমার শ্রীকৃষ্ণ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত দণ্ড সমূহ দ্বারাই সহচর বৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাকে জানিলেও যেন না জানিয়া তাহার চক্ষুর সন্নিধানে গমন অনুষ্ঠান করিলেন। हिंदी। तदंतर जिसके स्पर्श मात्र से विष चढ़ जाता है, ऐसे सर्प विशेष का पुत्र जिस प्रकार अतिशय कौतुक के वशीभूत होकर मेढक के पास जाता है, उसी प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण ने ऊपर की ओर उठे हुए दंड समूह को धारण करने वाले मित्र मंडल से मंडित होकर उस बकासुर को जानते हुए भी न जानते हुए की तरह उसकी चोंच के पास में जाने का अनुक्रम किया। श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील गोपाल चंद्र की जय।